Okay, so this is class number 2 of this chapter, credit risk, fixed income. So we discussed that when you invest in a bond, there is a possibility that the bond may default. There is also a possibility that the bond may not default, but the credit worthiness of the company may go down, which means the company's profitability falls, the company ka leverage goes up. So the risk that the company can default goes up even though the company actually doesn't default. Rating agencies, they try to monitor the same, but it has been found that they are late, which means only when the destruction has been done, then they downgrade. Financial markets are working on a real-time basis, and you will find that the best measure of what's happening to the company is reflected in the bond price and the stock price. So the bond price starts falling. If the bond price starts falling, at the lower price, the yield starts rising. I don't know how many of you will be able to capture this. जो मैं बोल रहा हूँ, bond price starts falling. तो नीचे down पे, if you calculate the yield, it will start rising, and therefore the yield spread starts widening. इसको slow करके बता रहा हूँ. There is a 1,000 face value bond, 1,000 face value, 10% coupon, 5 years maturity. 1,000 face value, 10% coupon, 5 years maturity. If you buy the bond, you will get 100, 100, 100, 100. Last में 100 plus 1,000. 100, 100, 100, 100. Last में 100 plus 1,000. And for the purpose of convenience, let's assume that the bond is priced at 1,000. तब तो story पूरा complete. You are going to earn a yield of 10%. If you looked at the figures, 1,000 दे रहे हो, 1,000 पे 10% मिल रहा है, लास्ट में 1,000 वापस, पूरा मैथ्स दिख रहा है, the yield will be 10%. But if the price of the bond falls from 1,000 to 970, bond will still pay 100, 100, 100. But you are buying the bond at a lower price, so you will earn more or less, more. So it becomes suppose 10.5%, or गिरता है दाम, it becomes 11.2%. So the price falls and the yield rises. If the yield rises, you deduct the yield from RF, from the benchmark yield. That's called the yield spread. That's called the yield spread. The yield spread also widens. Last class जो मैंने बताया नहीं था. So last class I started and said that credit risk has 3 components. One is default, पैसा मार लिया. The second is downgrade, rating fall कर गया पर वो बहुत late से fall करता है. And third is spread. Third is spread. LOSA, LOSB, LOSC. ठीक है तो? So we have not done anything about LOSB rating. We have not done anything about LOSC, which is what? Spread. Idea there. We started discussing LOSA. LOSA was describe credit risk. So what is credit risk? It is ex ante or ex post? Ex ante. It is not that जब पैसा मारेगा तो credit risk है. The fact that वो पैसा मार सकता है वो credit risk है. ठीक है तो credit risk is the possibility that the issuer, that is the borrower, may not fulfill its obligations. That is the definition of credit risk. There were 8 drivers of credit risk. अगर आप copy check करो, 8 drivers of credit risk which is captured by the C's of credit analysis. C's. उनमें से 3 top down drivers थे और 5 bottom up. There were 3 drivers which were top down, macro. There were 5 drivers which were company specific, issuer से related. तो जो macro drivers थे, they were country, currency and conditions. तीनों word बोलने से a certain field has to run in your mind, which may not be quantifiable. कि सर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं feel कर पा रहा हूँ, काफी आप feel कर पा रहे हो. Country, political system, legal system वगैरह. Currency, कि country ने किसी और currency में bond issue की है, तो उस केस में दिक्कत है. Because अगर by chance अपना currency depreciate हो गया, तो how will we repay? And third is conditions, मतलब the business cycle, recession, boom, क्या चल रहा है business conditions. Bottom up factors make company specific. So one is the capacity to pay, very important, capacity to pay, which depends on profitability, coverage, liquidity, leverage. The 3 words लिखा है ना, profitability, coverage and leverage.
higher profitability good, higher coverage good, lower leverage good. उसके बाद character, that is the willingness to pay. We look at the management का past reputation, the governance situation in the company, okay, past track record, and then we have 3 other conditions. They were capital, covenants and collateral. Capital, covenants and collateral. Capital, covenants and collateral. Capital मतलब और क्या resources है pay करने के लिए in case the cash flows of the company are not sufficient. How much capital they have, because अपने capital का definition क्या होता है? अगर डूबा तो capital सबसे पहले losses सहने को तैयार है, because equity has a residual claim to a company. When you buy the shares of the company, you are in the front line. Okay, you are the one who are going to face the losses. So how much of you are there? Bond holders would like to see that cash हम लोग के आगे capital खड़ा है, ठीक है? उसके अलावा covenants था, the restrictions imposed on the company, so that the company cannot take the bond holders for a ride. जो तो नहीं करेंगे पैसा उठा के, so the restrictions imposed on the company. Restrictions पे we talked about cross default provision and pari passu. Cross default pari passu का बात हुआ था. Pari passu was equal footing, जिसमें अपने analogy दिए थे एयर इंडिया का बिजनेस क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी, तो उसके एक क्लास के अंदर तो सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा ना. और क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन का मतलब था कि अगर मैं बॉन्ड होल्ड कर रहा हूँ और उस पर लिखा हुआ है देयर इज अ क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन, तो कंपनी अगर किसी और को डिफॉल्ट करता है तो मैं भी डिफॉल्ट माना जाऊंगा, विच इज़ गुड, बिकॉज दैट मीन्स आई कैन लीगली शू द कंपनी. अगर क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन नहीं होता तो मेरा तो डिफॉल्ट हुआ नहीं है, बाकी लोग कंपनी के एसेट्स को बेच के दे आर टेकिंग अवे मनी, बट आई एम नॉट एबल टू, सो आई विल बी लेफ्ट टू रिकवर वेरी लो अमाउंट. ठीक है, क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन काफ़ी लोग को समझ में नहीं आते. वो लोग को लगता है कि सर फिर आप भी डिफॉल्ट पे हो जाएंगे, तो अरे डिफॉल्ट एक्चुअली हो ही रहा है ना. जब कंपनी का हालत खराब हो गया तो इट्स बेटर दैट वी आर एबल टू सेफगार्ड आवर इंटरेस्ट एंड रिकवर द मनी फ्रॉम द एसेट्स ऑफ द कंपनी. करेक्ट, तो वो डिस्कशन हुआ था. ओके, सो दे वर द 8 C's. इसमें से क्वांटिटेटिव कौन सा था? कैपेसिटी एंड कैपिटल. कैपेसिटी और कैपिटल जो है वो क्वांटिटेटिव ड्राइवर्स था, बाकी सारा क्वालिटेटिव था. कैपिटल एंड कैपेसिटी, दे आर क्वांटिटेटिव बिकॉज यू मेजर कैपेसिटी बाय लुकिंग एट द कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, कंपनी का कवरेज रेशियो, कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो, वो मेजरेबल. ठीक है ना. ये सारा डिस्कशन किए थे. देन वी डिड डिस्कशन अराउंड, बीच में मैंने लिखाया था कि नहीं आई डोंट रिमेंबर, बट देयर वाज अ डिस्कशन अबाउट इनसॉल्वेंसी वर्सेस इलिक्विडिटी. डिक्टेट हुआ था क्या वो? आई थिंक डिक्टेट नहीं हुआ था. इनसॉल्वेंसी वर्सेस इलिक्विडिटी. Insolvency is a situation where the assets of a firm are less than the liabilities, but the company has become insolvent. Illiquidity का मतलब हुआ the company doesn't have the money to pay, it is not able to pay, maybe it is solvent. Just imagine a family, उसका बहुत बड़ा क्या बोलते हैं बंगलो है, ये है वो है, ठीक है ना, but at the same time वो अपना पेमेंट्स नहीं कर पा रहे वेंडर्स को because उसके पास लिक्विडिटी नहीं है. ठीक है ना. तो insolvency versus illiquidity. Obviously, which one is to give an analogy, 2020 में when we all confronted COVID, the Indian government did not go about recklessly distributing paychecks to people the way in which US did. Indian government knew its limitation. कि हम लोग को पता है हम लोग का capacity क्या है. Accordingly, the concern of the government was that जो लोग liquidity की वजह से परेशान हैं, जिन लोग का अदरवाइज सॉल्वेंसी है बट जिन लोग का लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो रहा है, उन लोग को पहले क्रेडिट लाइंस खोलना है. एंड द गवर्नमेंट इशूड क्रेडिट गारंटीज टू बैंक्स दैट इफ यू आर सपोर्टिंग सम MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस व्हिच आर फेसिंग लिक्विडिटी क्रंच, दे आर अदरवाइज प्रॉफिटेबल एंड वायबल, तो इन दैट केस वी विल प्रोवाइड द गारंटी. बट जो वैसे ही डूबा हुआ है उसको डूबने दो. बेटर है कि वो एसेट्स फ्री हो इकोनॉमी में और कोई और काम में आए. ठीक है. तो इंसॉल्वेंसी इलिक्विडिटी का मेरे को एनालॉजी वहाँ का याद आ रहा है जो 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने किया था. ठीक है, प्रोटेक्टिंग दोज हु आर फेसिंग इलिक्विडिटी बट हु आर अदरवाइज सॉल्वेंट, बट नॉट केयरिंग अबाउट दोज हु आर एनीवेज इनसॉल्वेंट, जैसे भी डूबे हुए. अंडरस्टूड.
राइट लेफ्ट टॉक करने से क्या होता है ना, वर्ड्स पे समय जाता है, 5 मिनट और जाता है, 2 मिनट और जाता है, तो इन दैट केस आपको वो डाइजेस्ट करने का मौका मिलता है, और बोल के निकलने से क्या होता है, वो मौका नहीं मिलता है. Okay, because of which these examples which I said about insolvency and illiquidity will ensure that आपके better digest होगा रहेगा. उसके बाद डिस्कशन हुआ था, but we did not dictate that credit risk का 2 components है, one is PD, the other is LGD. Probability of default and loss given default. Probability of default and loss given default. किसका probability of default ज़्यादा है? Investment grade bond का या high yield bond का? High yield bond का the probability of default is higher. Okay, they have very poor profitability, poor coverage, very high leverage. Okay, जो high yield junk bonds है, जिनका rating BBB से नीचे है, तो high yield bonds में probability of default is high. But I said generally the high yield issuers, they issue secured bonds. Which bonds? Secured bonds. Because अगर वो लोग अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स इशू करते हैं तो एक तो उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हाई है, दूसरा तो बाजार रेडी नहीं होते हैं अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स बाई करने के लिए. दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन लेटर ऑन कॉर्नर भी कि देखिए सर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये हाई यील्ड इशूअर अनसिक्योर्ड बॉन्ड इशू किए. आई सेड जनरली, मैंने जनरली बोला, और जनरली मतलब उसका एक्सेप्शंस होता है. तो अगर हाई यील्ड इशूअर का सिक्योर्ड बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? सिक्योर्ड. सिक्योर्ड मतलब अगेंस्ट सम कोलैटरल प्लेजिंग है, तो उस केस में रिकवरी रेट विल बी हायर. रिकवरी रेट विल बी हायर, तो लॉस गिवन डिफॉल्ट विल बी लोअर. लॉस गिवन डिफॉल्ट वुड बी लोअर. तो हाई यील्ड इशूअर जो है उसमें ऑल्दो पीडी इज हाई बट एलजीडी इज लो. फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर माइंड यू स्टार्ट हेटिंग बोथ पीडी एंड एलजीडी. हेट कर. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट खराब चीज है. तुम्हें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हाई है दैट्स रिस्की. वैसे ही प्लीज हेट एलजीडी. अगर लॉस गिवन डिफॉल्ट 80% है कि डिफॉल्ट हुआ तो केवल 20% रिकवर होगा, 80% पैसा डूब जाएगा, दैट्स बैड ना. तो आईजी में, इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड में पीडी लो होता है, वेरी गुड. बट अगर अनसिक्योर्ड बॉन्ड है आईजी का तो उस पर एलजीडी क्या होता है? हाई. Of course, LGD also depends upon seniority. बार बार बोलते गए थे LGD depends on 2 things, on the nature and the seniority of debt. याद है? On the nature and seniority of debt. तो nature means secured, unsecured. Seniority means it is senior or it is subordinate. Okay? Senior को पहले पैसा मिलता है, junior को बाद में. तो LGD depends upon that. तो high yield का LGD कम हो सकता है IG से. हाई यील्ड का लॉस गिवन डिफॉल्ट कम हो सकता है किससे? आईजी से. दिक्कत तब होगा जब तुम्हारे लिए एलजीडी एक शब्द हो गया और तुम सोच नहीं पा रहे, तो बेटर एलजीडी को शब्द मत लेना. एलजीडी लॉस गिवन डिफॉल्ट पूरा शब्द बोलो टू जनरेट द फील इन द इंट्यूशन व्हाइल डूइंग द मल्टीपल चॉइस कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो रिकवरी कम होगा, लॉस ज्यादा होगा, बिकॉज अनसिक्योर्ड है, बिकॉज सबऑर्डिनेट है. समझ गए? ये पूरा स्टडीज ऐसा है कि the one who is taking a deep breath and thinking about the same is common sense. The one who is trying to be really very fast and anxious will suffer. वो बोलेगा समझ में नहीं आ रहा है. जो थोड़ा सा समझ ले रहे हैं, 10 seconds 20 seconds का क्या बोल रहे हैं, आराम से सोचते हैं, उसके कंट्रोल में. हड़बड़ी करने से कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज अदरवाइज टर्मिनोलॉजी पे टर्मिनोलॉजी है ना, पीडी, एलजीडी, आईजी, एचवाई, they just become terminology. It becomes difficult to conquer. Okay, so always take 10 seconds to recap the stuff. Notes wise, I think we're just heading into dictation of probability of default and loss given default. Is it? वही components of credit risk तो वही हुआ ना, उसके अंदर ही अपना डिक्टेशन चालू होगा. किसी क्लास में फ्लो अच्छा चलता रहता है तो मैं डिक्टेशन को स्किप कर देता हूँ एंड आई से दैट ड्राइव पे नोट शेयर कर देंगे. बट लास्ट क्लास में देयर वर सम पीपल हु हैड जॉइंड फ्रेश न्यू. ओके, देयरफॉर आई डिसाइडेड कि थोड़ा सा डिक्टेशन मोड में जाते हैं. ओके, सो दैट द स्पीड इज रियली वेरी वेरी ऑप्टिमल. ठीक है ना? ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट रिस्क यू हैव रिटन. उससे 2 एरो निकालने. लेफ्ट साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट पीडी, right side loss given default LGD.
Left side probability of default PD, right side loss given default LGD. Right side loss given default LGD. चार्ट के बाहर आ रहे हैं और आप बुलेट वाइज लिख रहे हैं. फर्स्ट बुलेट, obviously IG bonds, investment grade bonds, IG bonds have a lower PD. IG bonds have a lower PD compared to HY. IG bonds have a lower PD compared to HY. Compared to HY. Next bullet. At the risk of sounding repetitive, at the risk of sounding repetitive, at the risk of sounding repetitive, comma, note that PD is a function of क्या तीन चीजें, dash, dash and dash. PD is a function of dash, dash and dash. किसी को क्लिक हो रहा है? काफी बार यूज हो गए. PD is a function of dash, dash and dash. Profitability, coverage and leverage. देखो, profitability, coverage and leverage. Okay, PD is a function of profitability, comma, coverage and leverage. Profitability, coverage and leverage. Next bullet. Next bullet. LGD, bracket percentage, bracket close, equal to 1 minus recovery rate, 1 minus recovery rate, bracket percentage, 1 minus recovery rate, bracket percentage. Next line, thus, if we expect to recover, if we expect to recover 65%, if we expect to recover 65%, comma, LGD is 35%, LGD is 35%. Next bullet. LGD is a function of nature and seniority of the debt. LGD is a function of nature and seniority of the debt. Nature and seniority of the debt. Full stop. When we say nature, comma, we are talking about secured versus unsecured debt. When we say nature, comma, we are talking about secured versus unsecured debt. We are talking about secured versus unsecured debt. Full stop. Since secured debt is collateralized, comma,
there is a higher recovery. There is a higher recovery and lower LGD. There is a higher recovery and lower LGD. Higher recovery and lower LGD. Full stop. And as far as seniority is concerned, comma, senior debt is paid before subordinate or junior debt. Senior debt is paid before subordinate or junior debt. Senior debt is paid before subordinate or junior debt. Full stop. Para change. Next bullet. By the above logic, comma, senior secured debt shall have the highest recovery. Senior secured debt, मैंने नेचर और रैंकिंग दोनों को मिला दिया. Senior secured debt, क्या लैंग्वेज था? Senior secured debt shall have the highest recovery. Shall have the highest recovery, while subordinate unsecured debt shall have least recovery. Subordinate unsecured debt shall have least recovery. Full stop. Language is okay with you all? बीच में समझा रहा नहीं, तो सब समझाया जा चुका. I'm expecting that आप लिख रहे हो तो आप सोच भी रहे हो लैंग्वेज में, ठीक है ना? Next bullet. It is often the case that high yield issuers, okay, the HY issuers, high yield issuers issue secured debt which has higher recovery, that is lower LGD, which has higher recovery and lower LGD. Higher recovery and lower LGD. Full stop. एक मिनट डिस्कस कर रहे हैं. लास्ट क्लास वर्बली डिस्कस हुआ था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है इनटू लॉस गिवन डिफॉल्ट, दोनों को सोचो. लॉस है, क्या चांस है डिफॉल्ट करेगा और फिर कितना डूबेगा. तो चांस इनटू डूबना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इनटू द लॉस गिवन डिफॉल्ट, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड लॉस. क्या? एक्सपेक्टेड लॉस. व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड लॉस फ्रॉम दिस बॉन्ड? So there is a 10% chance it will default, and if it defaults, there is a 60% recovery rate. So 40% loss. So 10% of 40% is equal to what? 4%. 10% of 40% is equal to what? 4%. That's called EL. That's called EL, expected loss. Very important that ये जो EL है, that is the required spread from the bond. That is the required spread from the bond. अगर मैं वो bond buy करना चाह रहा हूँ तो मेरे को 4% एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए बेंचमार्क के ऊपर. मेरे को 4% एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए रिक्वायर्ड. बॉन्ड का एक्चुअल यील्ड दिया रहेगा और बेंचमार्क का यील्ड दिया रहेगा. तुम दोनों के डिफरेंस निकालोगे. बॉन्ड यील्ड माइनस बेंचमार्क यील्ड, यू कैलकुलेट द डिफरेंस, तो पता चलेगा व्हाट इज द बॉन्ड प्रोवाइडिंग. तो एक आपको जो चाहिए, दूसरा है व्हाट इज इट प्रोवाइडिंग. एंड देन दे विल टेंड टू आस्क यू, आर यू ओवर कॉम्पेंसेटेड और अंडर कॉम्पेंसेटेड. जैसे कि
मेरा 10% इंटू 40% 4% आया रिक्वायर्ड स्प्रेड, पर बॉन्ड का जो स्प्रेड है ना वो सपोज चल रहा है 11 माइनस 6, क्या चल रहा है 11% यील्ड है, 6% बेंचमार्क है, 11 माइनस 6 क्या चल रहा है 5. So if I buy the bond I'll get 5% spread, but I require 4. So I'm getting the bond at a very good price, because एक चीज समझना, प्राइस गिरा हुआ है तभी तो यील्ड बढ़ा हुआ है. 11% एक दाम पे है, अगर आप बोलो 11 बहुत ज्यादा है मतलब दाम बहुत कम है. So you are over compensated. The bond is trading cheap. Yeah, the bond is undervalued. We should buy the bond. From a level 2, level 3 perspective, caliber doesn't lie in terms of saying that we should buy the bond. Caliber lies in terms of estimating PD and LGD. Understand? The markets are running. 11% सबको पता है, 6% सबको पता है, डिफरेंस सबको पता है. यानी वो चीज़ तो ऑब्वियसली विजिबल है. विजिबल क्या नहीं है, कोई कंपनी का क्या चांस है पैसा मारने का, वो विजिबल नहीं है. और कंपनी पैसा मारा तो लॉस कितना होगा, वो विजिबल नहीं है. उसके लिए वन हैज़ टू हैव जजमेंट, मॉडल्स, स्टेटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग और व्हाटएवर, बिकॉज ऑफ विच स्टेटिस्टिक्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टॉट टू यू, कि क्यों अपने को एफएसए सिखा रहा है, जिससे आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में जाके जज करेंगे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कवरेज क्या है, लिक्विडिटी क्या है. क्यों अपने को क्यूएम सिखा रहा है, बिकॉज क्यूएम में जो मेथड्स है उससे आप स्टेटिस्टिकली डेटा लेके निकालेंगे कि क्या चांस है कंपनी के डिफॉल्ट करने का. इकोनॉमिक्स क्यों सिखाया जा रहा है, बिकॉज the nature of the economy will determine how the industry will fare, how the company will fare. Do you understand? When you look at those tools are determined for the purpose of finding out the PD and the LGD. Got it? But ये awareness student का level 1 से okay is very good. ठीक है, I am moving towards that, the PD and the LGD. That is where differentiation lies. So for those category of people who will feel that just because they know EL is equal to PD into LGD, मेरे को formula पता है, therefore they should get a very high-fi job. Impossible, can't. ठीक है? For the category of people who know that मेरे को तो PD में दिमाग लगाना है, मेरे को LGD में दिमाग लगाना है, अपने आप को शार्पन करना है, कौन सा मॉडल्स है, मॉडल्स में क्या लिमिटेशंस है, ठीक है, रियल लाइफ डेटा कैसे लूँ, कैसे मिलूँ, there is the differentiation where you reach higher levels. ठीक है, एज अ टीचर हम लोग का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम डेफिनेटली वो चीज़ बताएं आपको कि वेयर डज द क्रीम लाई एंड हाउ टू अप्रोच द क्रीम. ओके, इसी बात पे किसी का कमेंट आया, उत्सव जैन, सर अगर गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू होता है तो उसका भी बेंचमार्क होता है क्या, लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड बेंचमार्क इन सॉवरेन बॉन्ड. अंडरस्टूड द डाउट लॉजिकल है. वो बोल रहा है कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपने बोला गवर्नमेंट बॉन्ड को बेंचमार्क लेने के लिए, तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उसमें हम बेंचमार्क क्या लेंगे. डिड यू अंडरस्टैंड द डाउट. आंसर दो प्रकार का है. पहला, अगर अपने बात करें जो हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर, व्हाट इन्वेस्टर, डोमेस्टिक से इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, फॉर यू द बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर रिस्क फ्री. You don't calculate their spread. However, if you are a global investor, you invest across the globe, you know that Indian government itself, in Indian economy, has a credit rating of BBB. India का sovereign rating is BBB. India का rating BBB. It is not AAA, it is not AA, it is not A, it is BBB. The last rating in the IG. Understood? So accordingly, जिनका AAA rating है ना, the likes of US, the likes of Switzerland, US was also downgraded, the likes of Switzerland, ठीक है, उनका जो AAA rating है तो उनका yield क्या चल रहा है और इंडियन गवर्नमेंट का yield क्या है, दोनों का डिफरेंस, एंड दे हैव टू बी पुट इन द सेम करेंसी पहले. ओके, डॉलर डिनोमिनेटेड यूएस का yield, डॉलर डिनोमिनेटेड इंडियन गवर्नमेंट का yield, तो इंडियन गवर्नमेंट का yield माइनस यूएस गवर्नमेंट का yield, दैट डिफरेंस is the sovereign yield spread of India. So don't we have that in fixed income? We have that in fixed income. Have we done that? Yes, we have done that when we were teaching sovereign securities. ठीक है, गवर्नमेंट इश्यूज के अंदर डिस्कशन किया हुआ है. ठीक है, तो इन दैट केस दैट्स द आंसर कि आपको यस इंडियन गवर्नमेंट का यूएस बॉन्ड से या स्विट्जरलैंड के बॉन्ड से डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो आपको आइडिया मिलेगा. वन ऑफ आवर क्या बोलते हैं सोर्स सिटीजन दामोदरन, okay, does it wonderfully well. Okay, Ashwath Damodaran from NYU Stern, he is the one
who has championed in terms of finding out spreads of sovereign countries अलग अलग मेथड से. ओके, वो अलग मेथड्स का मैं नाम ऐसे लेना नहीं चाहता हूँ बिकॉज कई जने जो डेरिवेटिव्स कर रखे हैं, कई जने जो डेरिवेटिव्स नहीं कर रखे हैं. जो डेरिवेटिव्स कर रखे हैं कब कर रखे हैं, कितना ध्यान आएगा, तो उसमें कुछ था CDS, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ डेरिवेटिव्स, उससे रिलेटेड लोग निकालते हैं. उत्सव गॉट इज आंसर. अब स्वप्निल सान्याल, सर इफ आस्क्ड व्हिच वन हैज हायर रिकवरी देन व्हाट विल बी द आंसर, IG और HY, वो नहीं पूछ सकते. ओके, IG या HY किस में हायर रिकवरी होगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता है, क्योंकि मैंने बोला HY जनरली सिक्योर्ड बॉन्ड करता है, बट ये जरूरी नहीं ना, HY का भी अनसिक्योर्ड हो सकता है. दीज आर नॉट CS ये सब एग्जामिनेशन जहाँ पे हैंड पूछेगा, दे नो वेरी क्लियरली, 50 बार ऑडिटेड रहता है पेपर जो पूछ रहा है, तो यू डोंट हैव टू सर्च एम्बिग्विटी वाला पार्ट. बाई चांस वो पूछ लिया तो ठीक है. तो या सपोज सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड, कौन सा, सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड एंड जूनियर सिक्योर्ड बॉन्ड, सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड, जूनियर सिक्योर्ड बॉन्ड, जमेला यहाँ पे सीनियरिटी वाइज और सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वाइज, वो तुमसे नहीं पूछेगा वो चीज. ठीक है, क्यों सर, वो निकाला तो जाता होगा, तब तो मैथ्स में आ गए, और मैथ्स का मॉडल तो किया ही नहीं है. LGD कौन से मॉडल से निकलता है, there is a gamma distribution which is usually used to model LGD. Are we doing gamma distribution? No, we are not doing the same. सब मेरा मन था करने का, of course sky is the limit, you can do it. घर पे बैठो, GPT Claude खोलो और चालू करो. तेजस सिंह, सर BBB चल रहा है इंडिया का, मैं भी वही बोला था. तेजस सिंह, इंश्योरेंस अपना बोला था CDS को. हाँ ठीक है, वो अपने मन का निकाल रहा है बड़ा. ओके, सो बीच में को डाइवर्ट करना पड़ता है, इट बिकम्स टू सीरियस. सो व्हाट वाज आई डिस्कसिंग एग्जैक्टली, इफ यू कैन मेक मी रिकलेक्ट, व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट डिक्टेटेड. ओह, मैं एक्सपेक्टेड लॉस का बात कर रहा हूँ. बिफोर डिक्टेटिंग द स्टफ मैं बात कर रहा था PD इंटू LGD से आएगा रिक्वायर्ड स्प्रेड, एक्सपेक्टेड लॉस, और एक्चुअल स्प्रेड दिया रहेगा. If the actual spread is greater than the required spread, the bond is underpriced. The bond is underpriced. ठीक है, जब मैं डिक्टेट करूंगा तो आपको देखना पड़ेगा, आपसे वो बने कंफर्टेबली वो घुस रहा है कि क्यों अंडरप्राइस्ड है. दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. ओके, लेट मी स्टार्ट डिक्टेटिंग. देखो नेक्स्ट बुलेट. How do we detect cheapness or richness of a credit sensitive bond? How do we detect the cheapness or richness of a credit sensitive bond? Question mark. Para change step 1. Required spread equal to expected loss bracket EL. Required spread equal to expected loss bracket EL equal to PD into LGD. Equal to PD into LGD. Step 2. Actual available spread. Actual available spread जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो चाहिए नहीं, जो मिल रहा है, actual available spread equal to yield on the bond under consideration. Yield on the bond under consideration. Yield on the bond under consideration minus benchmark yield. Yield on the bond under consideration minus benchmark yield. Minus benchmark yield. Para change. Case 1. If step 2 greater than step 1,
केस 1 में इफ स्टेप 2 ग्रेटर देन स्टेप 1, स्टेप 2 ग्रेटर देन स्टेप 1, हिंदी में सोचो, अगर आपको जो स्प्रेड मिल रहा है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो चाहिए, आपको जो स्प्रेड मिल रहा है रिवॉर्ड वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो चाहिए, ओके, इसलिए द हिंदी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ स्टेप 2 ग्रेटर देन स्टेप 1 डॉट 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 यू आर बीइंग ओवर कॉम्पेंसेटेड, you are being overcompensated, you are being overcompensated, you are being overcompensated, and therefore the bond is trading cheap, you are being overcompensated and therefore the bond is trading cheap, the bond is trading cheap, bracket undervalued, ब्रैकेट अंडरवैल्यूड, बॉन्ड सस्ते में बिक रहे हैं, बॉन्ड इज ट्रेडिंग चीप, ब्रैकेट में अंडरवैल्यूड। तो ये जो चीज लिखा रहा हूं ना, ये चीज जिसको समझ में आ रहा है वो एकदम हाइट्स पे ऑपरेट कर रहा है कि बॉन्ड का जो दाम है उस दाम पे ही यील्ड है, उस दाम पे ही यील्ड है, वो यील्ड को जब बेंचमार्क यील्ड से लेस किए तो स्प्रेड आया, हम लोग बोल रहे हैं वो ज्यादा है स्टेप 2, इसका मतलब बॉन्ड का यील्ड ज्यादा है, मतलब उसका दाम कम है। इनकेस आपको दिक्कत है, लेट्स से सिंपल फिगर्स, 1 साल का बॉन्ड है जो आपको 1 साल बाद 1100 देगा, कितना देगा 1100, स्टोरी इजी। अभी बॉन्ड का दाम 1000 है और आपको 1 साल बाद 1100 मिलेगा, व्हाट इज द यील्ड 10%। अभी 10% बोल पा रहे बिकॉज द फिगर इज सो सिंपल ना, कि 1000 दे रहे हैं 1100 मिलेगा, 1100 फिक्स्ड है, 1100 ही रहेगा, तो 10% इज द यील्ड। बट अगर दाम 1000 नहीं होता, अगर दाम 950 होता तो 950 से 1100 मिल रहा है, 950 पे 1100 मिल रहा है, द यील्ड इज ऑब्वियसली हायर। 900 दाम है तो 900 पे 1100 मिल रहा है, द यील्ड इज ऑब्वियसली हायर, द यील्ड इज अ फंक्शन ऑफ द प्राइस। So when we are saying the yield is higher, the spread is higher, that means the price is what? Lower. Understood? So I have seen it closely. Many people don't understand that part. They may बैठाओ बैठा ली, बैठाना अलग चीज है, बिकॉज जो बैठाते हैं वो कितना चीज बैठा पाएंगे, वो खुद ही बैठ जाएंगे, समझ गया? तो बैठाने पे हम लोग तो विश्वास नहीं करते, इट्स ऑलवेज द प्रोसेस। सो दैट जब भी चाहेंगे विल टेक 10 seconds and we'll be able to reach over there. ठीक है? केस 2 ऑब्वियस है, केस 2 इफ स्टेप 2 लेस देन स्टेप 1, स्टेप 2 माने हमको जो यील्ड स्प्रेड मिल रहा है दैट इज लेस देन स्टेप 1, लेस देन जो मेरे को रिक्वायर्ड है, स्टेप 2 लेस देन स्टेप 1 डॉट डॉट डॉट, द इन्वेस्टर इज अंडर कॉम्पेंसेटेड, द इन्वेस्टर इज बीइंग अंडर कॉम्पेंसेटेड, the investor is being under compensated, dash the bond is trading rich, महंगा, the bond is trading rich, bracket overpriced, the bond is trading rich, bracket overpriced. Parachange example. Consider a bond issued by X Limited dash. Next line. Credit rating, credit rating, triple B minus, triple B minus by 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 S&P, by Standard and Poor, and also by Fitch, by S&P and also by Fitch, FITCH. तो वर्ल्ड में ग्लोबली 3 रेटिंग एजेंसीज मेनली है, एक है मूडीज, एक है S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर, तीसरा है फिच। फ्रॉम अ ग्लोबल लेवल दीज आर द 3 रेटिंग एजेंसीज
that I talked about. हमारा दोस्ती ज़्यादा S&P और फिच से होता है बिकॉज इनका जो नोटेशन है ना रेटिंग का वो ईजियर है, ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी बी। मोदीज का रेटिंग जो है ना उसका सिंबल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो बताऊंगा LOSB के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा उससे दोस्ती कम होता है मोदीज से, ठीक है ना। मैंने बोला अभी इसका रेटिंग जो चल रहा है वो ट्रिपल बी माइनस चल रहा है एज पर S&P एंड एज पर फिच। क्या दोनों का रेटिंग सेम होना जरूरी है? दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, दोनों सिंबल सेम यूज करता है वो अलग बात है, पर दोनों का असेसमेंट अलग हो सकता है ना। दोनों का असेसमेंट क्या हो सकता है अलग? एज अ टीचर हाउ एफिशिएंट आई एम, देयर कुड बी टू डिफरेंट वर्जन्स फॉर टू डिफरेंट स्टूडेंट्स। कोई बोलेगा नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, कोई बोलेगा नहीं आई एम नॉट दैट सेटिस्फाइड। तो इन दैट केस दोज आर टू रेटिंग एजेंसीज ना, दे कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन। यहाँ मेरे को झमेला नहीं करना था, पर जानबूझ के LOSB में जाने वाले हैं ना बाद में, और LOSB रेटिंग के ऊपर है, तो जहाँ हो सकता है रेटिंग रेटिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ जिससे उसका डाइजेशन चालू करवा दूँ। समझ गए? ओके, आगे आपने लिखा रेटिंग, रेटिंग के बाद लिखिए YTM, yield to maturity, YTM of the bond, YTM of the bond 10.2%. Next line, YTM of benchmark security, YTM of benchmark security 6.8%. Next slide, probability of default, okay, PD, probability of default 12%. Next slide, recovery rate, recovery rate 42%, recovery rate 42%. Next slide, state whether the bond is underpriced or overpriced, state whether the bond is underpriced or overpriced, state whether the bond is underpriced or overpriced. Yes, please कीजिए। Somebody in the face-to-face classroom is saying it's overpriced. फीलिंग से नहीं बोलना है कि तुमको फीलिंग क्या आ रहा है, कैलकुलेशन से बोलना है, ध्यान रखना। तो जो कैलकुलेशन नहीं कर रहा है दैट इज नॉट अ करेक्ट एटीट्यूड, एंड इट इज द एटीट्यूड व्हिच मैटर्स द मोस्ट। यू डोंट हैव द कैलसी, यू हैव द फोन, फोन पे कैलकुलेटर है उस पर भी कर सकते हैं। यू डोंट हैव द फोन, पॉसिबल नहीं है, फिर भी इन दैट केस मन में कर सकते हैं कैलकुलेशन। So Jagannath Raju is saying that the required spread is 6.96%. Okay, Jagannath Raju, he is saying that the required spread is 6.96%. आराम से आप धीरे धीरे कर सकते हैं। चलो स्टेप 1 करते हैं, फिर चलो स्टेप 2 करते हैं, फिर चलो कंपेयर करते हैं, ठीक है टाइम। Aditya Das is saying the actual spread is 3.4%. क्यों बोल रहे हो?
तो रिक्वायर्ड स्प्रेड जो है PD इंटू LGD 12% इंटू 58% करना था। आई होप आपने 12% इंटू 42% नहीं किए, 12% इंटू 58% करना था। दैट इज द रिक्वायर्ड स्प्रेड। मैं डिक्टेट नहीं करूंगा सॉल्यूशन को, इन केस आपको लिखना है तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। जो रिक्वायर्ड स्प्रेड है ना, एक्सपेक्टेड लॉस, दैट इज PD इंटू LGD। सो 12% इंटू 58% कितना, 6.96% हमें चाहिए। 12% इंटू 42 नहीं, 12% इंटू 58, बिकॉज रिकवरी अगर 42 है तो लॉस गिवन डिफॉल्ट इज 58, तो 6.96 चाहिए। अब जो स्टेप 2 जो एक्चुअल स्प्रेड मिल रहा है वो है YTM ऑफ द बॉन्ड विच वाज आई थिंक 10.2 माइनस 6.8 विच इज व्हाट 3.4। तो वी आर बीइंग अंडर कॉम्पेंसेटेड, वी आर बीइंग अंडर कॉम्पेंसेटेड, केवल 3.4 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वी आर बीइंग अंडर कॉम्पेंसेटेड, देयरफॉर द बॉन्ड इज व्हाट ओवरप्राइस्ड। ओके, दैट इज द आंसर। कि चाहिए 6.96, मिल रहा केवल 3.4 है, द बॉन्ड इज ओवरप्राइस्ड, बहुत महंगा बॉन्ड है। ठीक है, मैं डिक्टेट नहीं करने वाला हूँ, दैट इज द प्रॉब्लम इन आवर क्लासेस। मैं उस तरह बीकॉम के जैसे डिक्टेट नहीं करता हूँ आंसर्स को। आई कैन डिस्कस इट 10 टाइम्स, ठीक है, बट आई डोंट डिक्टेट लाइक दिस, राइट डाउन दिस, दैट डजंट हैपन। ठीक है, ओके, तो ये ओवरप्राइस्ड है। बुक में एक फॉर्मूला दिया हुआ है LGD का, सुनना, बुक में एक फॉर्मूला दिया हुआ है LGD का, फॉर्मूला दिया हुआ है, लिखते हुए डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट बुलेट, द टेक्स्ट प्रोवाइड्स अ फॉर्मूला फॉर LGD, द टेक्स्ट प्रोवाइड्स अ फॉर्मूला फॉर LGD in dollar terms. The text provides a formula for LGD in dollar terms. The text provides a formula for LGD in dollar terms. अब जब हम लोग डॉलर टर्म्स बोलते हैं ना, यूजुअली क्लास में हम लोग बोलना चाहते हैं इन एब्सोल्यूट अमाउंट। ऑब्वियसली वो इन INR भी हो सकता है, इन CHF हो सकता है, इन AUD हो सकता है। बोलना चाह रहे हैं अमाउंट, परसेंटेज नहीं अमाउंट। ठीक है ना, तो इन डॉलर टर्म्स डैश, नेक्स्ट लाइन फॉर्मूला है LGD इक्वल टू एक्सपेक्टेड एक्सपोजर इनटू ब्रैकेट 1 माइनस रिकवरी रेट, एक्सपेक्टेड एक्सपोजर इनटू 1 माइनस रिकवरी रेट। एक्चुअली 1 माइनस रिकवरी रेट तो LGD परसेंटेज ही हो गया, तो बोल रहे हैं वो 58% ऑफ कुछ, तो ऑब्वियस है अगर LGD 58% था तो अमाउंट क्या होगा 58% ऑफ कुछ। जस्ट लुक एट द वे इन विच स्टडीज आर स्पॉइल्ड बाय वे ऑफ दीज इलॉजिकल फॉर्मूलाज। इज इट अ फॉर्मूला? LGD का परसेंटेज है तो अमाउंट क्या होगा 58% ऑफ कुछ। ठीक है, इन दैट इज द रीजन व्हाई आई हेट फॉर्मूलाज। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फॉर्मूला ओवर हियर। अब वो जो कुछ है ना, वो कुछ बोल रहा है एक्सपेक्टेड एक्सपोजर। एक्सपेक्टेड एक्सपोजर क्या हो गया, जब कंपनी डिफॉल्ट करेगी उस दिन हाउ मच विल बी ड्यू फ्रॉम द कंपनी। व्हेन द कंपनी विल डिफॉल्ट, हाउ मच विल बी ड्यू, दैट्स एक्सपेक्टेड एक्सपोजर। एक्सपेक्टेड एक्सपोजर फॉर द पर्पस ऑफ क्वेश्चंस, दिमाग लगाया नहीं है। एक्सपेक्टेड एक्सपोजर हर क्वेश्चन में बोला है 1000, क्या बोला है 1000 का बॉन्ड है 1000, बट सिंस लिखा है एक्सपेक्टेड एक्सपोजर, एक्सपेक्टेड एक्सपोजर क्या हो गया कि जब कंपनी पैसा मारेगा उस समय जो भी आउटस्टैंडिंग है, वॉट एवर इज आउटस्टैंडिंग, मे बी इट इज 1000 प्रिंसिपल प्लस सम कूपन्स आल्सो आउटस्टैंडिंग, ओके। तो एक्सपेक्टेड एक्सपोजर इज द टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग माइनस market value of the collateral, minus market value of the collateral. That is the definition of expected exposure. Okay, what is the total amount we are supposed to receive from the company and minus the market value of the collateral. लिख दो please. पहले तो शॉर्ट फॉर्म लिख दो उसका, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एक्सपोजर इनटू 1 माइनस रिकवरी रेट।
तो शॉर्ट में एक्सपेक्टेड एक्सपोजर को ई लिख दें, ई इक्वल टू ई डबल ई ब्रैकेट 1 माइनस आर आर, डबल ई ब्रैकेट 1 माइनस आर आर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, where double E equal to total amount outstanding at the time of default, total amount outstanding at the time of default minus market value of collateral, total amount outstanding at the time of default minus market value of collateral. Para change, although in practice they will tell you the exact EE. EE दिया रहेगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा. They will tell you the exact EE. Para change example. For a bond dash, next slide, PD, probability of default, PD equal to 5%. RR, recovery rate equal to 40%. EE, expected exposure, equal to $400 million. Calculate LGD in dollar terms and also EL in dollar terms. Calculate LGD in dollar terms and also EL in dollar terms. Calculate LGD in dollar terms and also EL in dollar terms. Tanya missed the formula for expected exposure. The formula is total amount outstanding at the time of default minus market value of the collateral. Total amount outstanding at the time of default minus market value of the collateral. तो आपका मैं ऐसे सोचो, अगर वर्बली किसी को करना है वर्बली, तो रिकवरी रेट 40% है, तो लॉस क्या है 60%, तो 60% ऑफ 400 मिलियन, 60% ऑफ 400 मिलियन कितना हो गया 240 मिलियन इज एलजीडी. लुक एट द स्मूथनेस, व्हेन यू डोंट यूज द फॉर्मूला यू आर सो फ्री. रिकवरी रेट इज 40%, डूबेगा कितना 60%, किसका 400 का, क्या बुद्धि लगाए 240 मिलियन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दे आर हैंडीकैपिंग अस बाय वे ऑफ अप्लाइंग द फॉर्मूला. ओके, लिख दो सॉल्यूशन. मैं सॉल्यूशन फिर अपने टोन में लिखा रहा हूँ. RR 40%, that is LGD 60%. I'm not decorating the solution, saying in my tone. RR 40%, so LGD 60% of 400. LGD 60% of 400 equal to 240 million. Equal to 240 million. Therefore, EL equal to PD into LGD. So 5% of 240 million. 5% of 240 million. Dollars 12 million. 5% of 240 million equal to dollars 12 million. Dollars 12 million. तो एक होता है रिदम में करना और एक होता है फॉर्मूला देख देख के करना. As soon as somebody gets the rhythm करने का स्टाइल, he goes into a different level. पढ़ाई अलग चीज हो जाती है, बिकॉज फॉर्मूला देख देख के करना जिंदगी में किए चल पुट करते हैं, दैट इज नॉट गुड. ठीक है, ओके. सो ये कैलकुलेशन इस तरीके से पूछ सकता है, दे कैन आस्क. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बुलेट. The text distinguishes between the terms. The text distinguishes between the terms
between the terms dash parachain next line, insolvency dash assets less than liabilities, parachain next line, illiquidity, parachain illiquidity dash inability to arrange funds, to pay the debt, आज अपने कॉमन सेंस का बात कर रहे थे। कोई कंपनी का जब डेट का इंटरेस्ट ड्यू होता होगा ना, तो दिस 2022 I think was the period where there was a lot of talk about the real estate collapse in China, the fact that there are zombie houses over there which have been built and there's nobody to stay. You must have all heard about it because ये सब चीज यूट्यूब पे ज़्यादा फॉरवर्ड होता है ना, देख चाइना में क्या चल रहा है, ठीक है। तो इन केस यू आर एबल टू रिकलेक्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ कि बड़े बड़े शहर है जहाँ पे इतने सारे कंस्ट्रक्शन हो गए एंड देयर इज नोबडी टू लिव, ऑल दोज रियल एस्टेट कंपनीज, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर एवरग्रांड, ओके, उसका न्यूज़ बहुत सारा आ रहा था कि एवरग्रांड डिफॉल्ट करने वाला है, उसका कितना $45 मिलियन का कूपन पेमेंट ड्यू है से 15 दिन बाद। तो जब किसी कंपनी का ऐसा केस आता है जहां पे उसका $45 मिलियन ड्यू है कूपन पेमेंट और कोई स्कोप नहीं है पे करने का, पहला बात तो काश कैश फ्लोज आ जाए। तो अगर एक रियल एस्टेट कंपनी फ्लैट्स बेच दिया होगा या भाड़े पे लगा दिया होगा तब तो पैसा आएगा ना, बट सारा का सारा फ्लैट्स ही खाली है तो पैसा कहाँ से आएगा? तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज नॉट सफिशिएंट। व्हेन इट इज नॉट सफिशिएंट यू गो टू क्रेडिट लाइंस, बैंक ओडी का फैसिलिटी जो बैंक से है आपका, क्रेडिट लाइंस, ओके, बैंक ओडी रिवॉल्विंग, जो अपने बैंक ओडी बोलते हैं इंडिया में, दैट्स अ रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन, बिकॉज अगर 50 मिलियन का बैंक ओडी है तो आप जितना चाहिए यूज़ करो, ठीक है, फिर वापस से रिप्लेनिश हो जाएगा अप टू 50, तो वो सब यूज़ करके आप पे करना चाहते हो। पर बैंक्स लोग भी क्रेडिट लाइंस को रिवोक कर सकता है, दे में कैंसिल द क्रेडिट लाइन, ठीक है, इरिवोकेबल भी होता है, रिवोकेबल भी होता है। पैसा आप उठा नहीं पा रहे, समझा? जस्ट इमेजिन अ फैमिली जो टू मच डेट पे स्ट्रेस्ड है, जैसे मूवीज में दिखाता है ना, पैसा देना है और इससे मांग रहे उससे मांग रहे, पैसा उठ नहीं पा रहा है, दैट्स अ सिचुएशन ऑफ इलिक्विडिटी। फिर नेक्स्ट नौबत आता है अपने एसेट सेल करते हैं, ठीक है ना, वो क्या ना जेवर गिरी रखना इन हिंदी मूवीज, बिकॉज दोज आर वेरी गुड स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट्स टू एक्सप्लेन व्हाट्स हैपनिंग एट कॉर्पोरेट लेवल आल्सो, द सेम थिंग हैपेंस एट कॉर्पोरेट लेवल आल्सो, ठीक है ना, एंड अकॉर्डिंगली वो उससे ही पैसा जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो इन दैट केस वो इलिक्विडिटी है ना, क्या पैसा जनरेट नहीं हो रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि एसेट्स आर लेस देन लायबिलिटी बट लिक्विडिटी है। कितने सारे रिच फैमिलीज होंगे, ओके, बड़े बड़े जमींदार एंड ऑल दैट स्टफ, जिन लोग का एक्चुअली एसेट्स लेस देन लायबिलिटी है, दे आर अंडर वाटर, बट बिकॉज ऑफ देयर कॉन्टैक्ट एंड ऑल दैट वो चर्निंग करते जा रहे हैं, पैसा उठा के पैसा लौटाते जा रहे हैं, अंडरस्टूड? सो दे आर लिक्विड बट दे आर व्हाट, इनसॉल्वेंट। तो ये है बहुत कॉमन सेंस की बात। कई बार स्टडीज में जो कॉमन सेंस टॉक है, इफ टेकन इन अ सोफिस्टिकेटेड मैनर डजंट गो डाउन दैट वेल एज कंपेयर्ड टू जस्ट ओपन इट आउट इन अ लिटरल मैनर, ओके, एंड इट इज रिक्वायर्ड टू बी डन दैट वे, गॉट इट? तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने लिखा दिया ना, यहाँ पर जो लिखा है उसमें वो सेंस नहीं आया जो मैंने बोला अलग से, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इतना सिंपल टॉक हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक एलओएसए के बारे में सब कुछ बता दिए। एक बार कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं टू सी हाउ डू वी फेयर। क्वेश्चंस को वी वांट टू टेक इट एज अ टेस्ट, टेस्ट मींस फ्रॉम योर साइड आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर 1 का बी या 1 का सी 2 का ए लिखते जाना, ठीक है, कॉपी में। दैट्स अ प्रूफ ऑफ द फैक्ट आपको कितने मार्क्स मिले। कोई भी फेस टू फेस बैच में है वो मुंह से बोलना मत कि बी या सी, अदरवाइज अदर्स कैन हियर एंड यू आर इन्फ्लुएंसिंग द अदर पर्सन,
ठीक है। और जो वहाँ पे लाइव क्लास कर रहे हैं वो लोग भी कॉपी में लिखते जाना, एंड वो लोग बोल भी सकते हैं 1 का बी 2 का सी, ऑल्दो मैं उसको स्पीक आउट नहीं करूँगा, ठीक है। तो आई विल कीप ऑन रिमूविंग देम। नॉर्मली एग्जाम में आपको पता होगा 1.5 मिनट्स मिलते हैं पर क्वेश्चन, आई यू अवेयर? 90 क्वेश्चंस आते हैं, 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन, तो 135 मिनट्स का टेस्ट होता है, 2 घंटा 15 मिनट का। उसके बाद ब्रेक होता है, ऑप्शनल ब्रेक। कोई कोई बोलते हैं हमको ब्रेक नहीं चाहिए, चल तुरंत दे दे नेक्स्ट वाला चालू, बट जो इंसान होते हैं उन लोग को ब्रेक चाहिए होता है तो दे टेक एन ऑप्शनल 15-20 मिनट्स का ब्रेक, एक हॉट कॉफी सिप किया, वापस से बैठ गया 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है। तो 1.5 मिनट मिलता है, यहाँ पे अपने 1.5 मिनट नहीं लेंगे। रीज़न अभी अभी टॉपिक आपको सिखाया गया है, सारा दुनिया आपके माइंड में नहीं है, केवल वही टॉपिक एक LOS, तो उस पर ऑब्वियसली वी शुड टेक मैक्सिमम 40-60 सेकेंड्स टू डू इट मैक्सिमम। मैं अपने हिसाब से हटाते जाऊँगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। कॉपी में प्लीज़ मार्क जरूर करना, 1 का क्या, 2 का क्या, सो दैट यू आर एबल टू, नॉट दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू तुमको क्या मार्क्स मिला, इट्स योर पर्सनल असेसमेंट। स्टार्ट हो, LOS A का क्वेश्चन। 1 मिनट रॉन्ग फाइल खोले, नहीं करना है, हाँ ये वाला फाइल है। अब स्टार्ट हो रहा है। कंपनी का नाम 4 बार इज्जत से मत पढ़ना, ओके। नॉर्थ गेट इंडस्ट्रियल, अच्छे से नहीं चाहिए, कोई भी है, नाटू फाटू। आगे so I move to the next question. I am moving to the next one. तुम लोग को दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? दिख पा रहा है? लिटिल बिट, हमेशा यही होता है। सॉरी, व्हाट डू आई डू? फोन पे भी खोल लो ना साथ में। नहीं, यूलेन ऐप पे। Next question. 4. Moving to the next one.
I'm moving to the next one. I'm moving to the next one. Question 8. Next question.
Question 10. नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 10 क्वेश्चंस थे। 10th वाले का आंसर वाज ए। ये 10th वाला जो है उस पर बोला था कंट्री में लीगल सिस्टम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दैट वाज अबाउट कंट्री। जो कंडीशंस होता है दैट डील विद मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल्स, बिजनेस एनवायरनमेंट गड़बड़ है, रिसेशन चल रहा है, वीक इकोनॉमी, और कवेनेंट्स तो टॉप डाउन है, वो बॉटम अप है कि क्या कंडीशन से बॉन्ड इंडेंचर में लिखा हो। ए वॉज द आंसर। नंबर 9 में एक सिक्योर्ड बॉन्ड है, एक अनसिक्योर्ड है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, तो इन दैट केस सिक्योर्ड का रिकवरी क्या होगा ज़्यादा, तो सिक्योर्ड में एलजीडी क्या होगा कम। ऑप्शन बी, द सिक्योर्ड बॉन्ड हैज अ लोअर एलजीडी देन द अनसिक्योर्ड बिकॉज ऑफ द प्लेज्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एज अ सेकेंडरी रिपेमेंट सोर्स। ओके, सिक्योर्ड में दो सोर्सेज है, प्राइमरी कैश फ्लो, सेकेंडरी वो जो प्लेज्ड है, लास्ट क्लास डिक्टेट हुआ। बी वॉज द आंसर, 9 का बी। 8 का सी इज द आंसर। 8, which of the following most accurately describes the relation between the issuer's seniority structure and its LGD? Option number A, senior unsecured debt has a lower LGD than subordinate debt. मेरे को यहाँ तक ठीक लग रहा है, सीनियर का लॉस कम होता है सबॉर्डिनेट से, यहाँ तक का लैंग्वेज सही है। बिकॉज unsecured creditors receive priority in bankruptcy proceedings. ये wrong है। The second part of the sentence is wrong, the first part of the sentence is right. Unsecured को प्रायोरिटी थोड़ी मिलता है। तो दिस वॉज अ क्वेश्चन जिसमें हो सकता है गड़बड़ हुआ होगा बहुत जन का। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस वॉज रॉन्ग। आंसर इज सी, सिक्योर्ड डेट हैज अ लोअर एलजीडी, उसका लॉस कम होता है देन अनसिक्योर्ड बिकॉज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैव एक्सेस टू प्लेज्ड कोलैटरल एज एन एडिशनल सोर्स ऑफ रीपेमेंट। ऑप्शन नंबर सी वॉज द आंसर। 7 का आंसर इज ए। तो यहाँ जो दो कंपनीज है उनमें से फर्स्ट कंपनी का EBIT मार्जिन 18% है, सेकेंड कंपनी का केवल 6% है। फर्स्ट कंपनी का EBIT टू इंटरेस्ट 7.5 टाइम्स, 1 रुपया इंटरेस्ट लौटाना है तो 7.5 कमा रहा है कवरेज, पर दूसरे कंपनी का इट इज ओनली 1.9 टाइम्स। फर्स्ट कंपनी का जो डेट है ना, डेट वो अर्निंग्स का 1.8 टाइम्स है, सेकेंड कंपनी का जो डेट है वो अर्निंग्स का 5.5 टाइम्स है, वेरी हाई लेवल ऑफ डेट लेवरेज। तो फर्स्ट कंपनी का हायर प्रॉफिटेबिलिटी, EBIT मार्जिन, हायर कवरेज एंड लोअर लेवरेज। ऑप्शन नंबर, हायर प्रॉफिटेबिलिटी, हायर कवरेज, लोअर लेवरेज, ऑप्शन नंबर ए। 7 का ए। 6 का आंसर इज ए। इसके अंदर तो कैलकुलेशन था 4% और 55%। अगर मैं वर्बली करता, मेरा कैलकुलेटर नहीं है, तो 4 और 55 इज रफली 2, व्हाट इज इट, 2 अपने को चाहिए, और 5.8 माइनस 3.2 इज 2.6। 2.6 अपने को मिल रहा है, वी आर गेटिंग ओवर कॉम्पेंसेटेड। Hartwell bond investors are more than fairly compensated for assuming credit risk. Option number A. 40% recovery है, 60% नुकसान है, 60% of 10 lakh, 6 lakh is the LGD, और 6 lakh का 3.5%, 6 lakh का 3% 18,000 होता है, 18,000 से ऊपर वाला आंसर 21,000। B is the answer, 5 का B। 4 का आंसर है A। Crystalline Energy Corporation has issued both secured and unsecured bonds. Secured bonds are backed by a first lien on specific oil properties. In the event of default, which of the following correctly describes the recovery position? Both secured and unsecured holders have access to unpledged assets. Unpledged, yes, but only secured bond holders have an additional claim on the specific pledged assets. True. ओके, जनरल अनइनकम्बर्ड एसेट्स पे सबका हक है, पर प्लेज्ड एसेट्स पे केवल सिक्योर्ड का हक है। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। 3 का आंसर इज सी। रेडवुड प्लास्टिक्स
as total assets of इतना, liability ज़्यादा है, तो insolvent है. The company is currently meeting all its debt payment obligations using proceeds from a credit facility. तो ये insolvent है पर illiquid नहीं है. Redwood is insolvent but not illiquid. Option number C. 2 का आंसर is B. A sovereign government issues bonds denominated in foreign currency. ये सबसे easy था. The country has strong domestic tax base but limited reserves. Which of the following factors from the C is its greatest additional concern? Since उसका reserves कम है तो डर लगता है ना, क्या पता repayment नहीं करे foreign currency का, currency risk. B was the answer. 1 का answer was C. Northgate recently experienced a sharp decline in operating cash flow due to rising input cost and intensifying competition. A credit analyst reviewing Northgate's bond is assessing the firm's ability to generate sufficient cash. Which of the C's are we checking? Capacity. उसका दम है क्या पे करने का, कैश फ्लो जनरेट कर रहा है क्या? ओके, सो दीज वेर दी आंसर्स. जो न्यू कमर्स है अभी रिसेंटली ज्वाइन किया उनको नहीं पता होगा, वरना आजकल क्लास में हमेशा 2 फाइल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. एक फाइल में बढ़िया क्वेश्चंस है विच आर दीज, जिनमें समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है. अभी आप लोग ट्राई करें थे, हड़बड़ी से वो अलग बात है, बट इफ यू रिकैप एंड यू जस्ट डू द क्वेश्चन अगेन यू विल फाइंड इट्स वेरी गुड. जो दूसरा फाइल है, ओके, विच इज दिस फाइल, इसमें कमती क्वेश्चन है, ट्राई करो प्लीज. सेकेंड टेस्ट है, थको मत, करो करो. दिस इज इंस्टीट्यूट का फाइल, ये CFA इंस्टीट्यूट का फाइल है. थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, पीछे में दिक्कत हो रहा है देखने में. क्रेडिट रिस्क इज, ओके, आप मन में सोच लो इसको टेस्ट वाइज नहीं करे साथ में. पहला बोल रहा है एक्टिवेटेड अपॉन डिफॉल्ट, तब तो ये एक्सपोज्ड हो गया. एक्टिवेटेड अपॉन डिफॉल्ट यानी क्रेडिट रिस्क तब पैदा होगा जब डिफॉल्ट होगा. आई सेड इट्स एक्स एंटी, इट्स नॉट एक्सपोज्ड. So A is wrong because बोल रहा है activated upon default. Even if there is no default, there is credit risk. There is the possibility of default. B, credit risk is the spread an investor receives above the risk rate. Credit risk is not that, na. Okay, spread may be one component of credit risk. Credit risk is experienced in several ways by lenders. मेरे को तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेतुका लगा. I can't you feel it? क्या लिख रहा है? Experienced in several ways by lenders. As compared to this question, the quality which was there in the other file, you would acknowledge that that quality is better. And it's not that ऐसा ही तो आएगा, इंस्टीट्यूट ने जो बोला, ये सब इंडियन मेंटालिटी है. इफ यू आर नॉलेजेबल, आप बढ़िया क्वेश्चन से आप प्रिपेयर करो तो बढ़िया रहते हैं. देखो मेरा स्ट्रेस आजकल दूसरे फाइल में होता है. दिस इज द इंस्टीट्यूट का फाइल, द अदर इज द जीपीटी क्लॉड का फाइल. इसमें जीपीटी क्लॉड से प्रॉम्प्ट निकाल के एक एक पार्ट पे जाके निकाला गया क्वेश्चन कि कुछ भी मिस नहीं हो जाए उस पोर्शन में. You find the लंबा वाला क्वेश्चन था जीपीटी वाला. ओके, तो यहाँ पे आंसर सी है. एक्सपीरियंस इन सेवरल वेज बोल रहा है, पैसा रिकवर नहीं हो उसको स्क्यू करना पड़ेगा, लीगल कॉम्प्लिकेशंस होगा, कोलैटरल बेचना पड़ेगा, कॉवेनेंट्स देखना पड़ेगा. तो इट एक्सपीरियंस सेवरल वेज बाय लैंडर्स. वेरी वेरी ऑड क्वेश्चन, आई डिडंट लाइक इट एट ऑल. ठीक है, 1 का सी. 2, एक्सपेक्टेड लॉस पूछा है. लास्ट लाइन देखो, जब भी डेटा हो ना, डेटा जब भी हो CFA एग्जाम में, डेटा को मत देखना, हमेशा लास्ट लाइन देखना, पूछा क्या है भाई. तो रिकवरी रेट इज 90%, तो लॉस इज व्हाट 10% इज द लॉस. 10% ऑफ पर एक्सपेक्टेड एक्सपोजर 4 लाख दे दी है. इफ यू रिमेंबर सर, आपने लिखाया था कि 4 लाख में से 1 लाख लेस होता है, बट ये तो एक्सपेक्टेड एक्सपोजर दे दी है. मैं एक बार बुद्धि नहीं लगा रहा हूँ, जैसे दिया वही कर रहा हूँ. 10% ऑफ 4 लाख इज व्हाट 40,000 एंड 40,000 का 5% इज व्हाट 2000 आंसर है क्या, देखते हैं. अगर आंसर नहीं हुआ तो जाके ये लोग कोलैटरल का यूज किए. 20 द आंसर, बिकॉज ये लोग फॉर्मूला यूज करेंगे. इट वाज गिवन एक्सपेक्टेड एक्सपोजर क्लियरली ना, तो नॉट अप्लाइंग एनी ब्रेन ओवर देयर. Which of the following statement best describes the difference between unsecured and secured debt obligation in the event of issuer default? दोनों को ही ऑपरेटिंग दोनों को ही अनप्लेस्ड एसेट्स पे हक है, बट प्लेस्ड एसेट्स पे हक सिक्योर्ड है. सिक्योर्ड का रिकवरी ज़्यादा होगा, LGD कम होगा. कौन सा ऑप्शन? बी, बोथ अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड डेट होल्डर्स हैव एक्सेस टू अनप्लेस्ड एसेट्स, while only secured debt holders have access to specific pledged assets.
एज अ सेकेंडरी रिपेमेंट सोर्स। ये शायद वहाँ पे भी था ये क्वेश्चन, आंसर इज बी। Which of the following factors are associated with a lower probability of default? कब होते हैं? Lower probability of default and higher credit quality. अगर profitability क्या होगा? High, coverage क्या होगा? High, leverage क्या होगा? Low. C. तब जाके lower probability of default. A bond investor analyzing whatever unsecured debt estimates a PD of 2%, LGD of 80%. तो फीलिंग आया 1.6% का मेरे को, 2 का 80. Using this information to approximate the annual credit spread and observing an actual spread of 2%. So we want 1.6, we are getting what? 2. We are being overcompensated. An investor would be more than fairly compensated. Option number C. हम लोग को 2 of 80, 1.6 चाहिए, मिल रहा है अपने को 200 basis point यानी 2%. You may be knowing that 100 basis point का मतलब 1% होता है, ठीक है? तो 1.6 चाहिए पर मिल रहा है अपने को 2%, तो ज़्यादा मिल रहा है। C is the answer. Question 6. An uncollateralized 2 lakh note has the following characteristics. Uncollateralized मतलब unsecured. Uncollateralized क्या पूछा है? The note's expected loss in the event of default is 2,500. What is the probability of default? Back calculation. ठीक है, एक्सपेक्टेड लॉस दे दिया, तो रिकवरी रेट 95% है, तो लॉस कितना है? 5% ऑफ 1,50,000. 5% ऑफ 1,50,000 इज व्हाट? 7,500. तो 7,500 इज LGD. व्हाट इज इट? LGD. सो PD इंटू LGD इज 2,500. तो इफ यू डिवाइड 7,500, तो 2,500 बाई 7,500 इज व्हाट? 1/3. हौले हौले भी कर सकते हैं, समझ गया? जैसे बुक पे किया रहता है, लिखेंगे, इट्स नॉट रनिंग ओवर हियर, कि LGD इक्वल टू EE इंटू 1 माइनस RR. फिर आदमी वहाँ देखेगा 1,50,000, 95%. सो 1,50,000 इंटू 1 माइनस 0.95 इक्वल टू आ गया 7,500. फिर करेगा EL इक्वल टू PD इंटू LGD. सो PD इज इक्वल टू EL डिवाइडेड बाय व्हाट? LGD. सो दिस इज 2,500, दिस इज 7,500. इट इज 1/3. अंडरस्टूड? इट्स 1/3. 33.33%. ऑप्शन नंबर C. बॉन्ड 1, बॉन्ड 2, दो बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड 1 में 1.25 इंटू 75 क्या हुआ? बॉन्ड 1 में 1.25 इंटू 75% क्या हुआ? हाँ, 0.94 हुआ क्या? 1.25 इंटू 75%, व्हाट इज इट? 1.25 इंटू 75%, 0.94. जबकि मिल रहा है 1%, चाहिए 0.94, मिल रहा है 1%. वेरी गुड बॉन्ड. बॉन्ड 2 1.1 इंटू 85 क्या हुआ? 1.1 इंटू 85 क्या हुआ? 0.935 और मिल रहा है 0.95. इसमें भी ज़्यादा मिल रहा है, तो दोनों के दोनों बॉन्ड्स बढ़िया हैं, दोनों में अपने को ज़्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू जो चाहिए. कौन सा ऑप्शन? पहला बोला इन्वेस्टर शुड बी इंडिफरेंट इन बॉन्ड 1 एंड बॉन्ड 2 सिंस बॉन्ड 1's हायर स्प्रेड इज सफिशिएंट कॉम्पेंसेशन फॉर हायर POD वर्सेस बॉन्ड 2. ठीक है, इन्वेस्टर शुड प्रेफर बॉन्ड 2, इन्वेस्टर शुड प्रेफर बॉन्ड 1. मेरे को तो ये लग रहा है कि दोनों ही बॉन्ड जो है वो तो अंडर प्राइस थे. सी पढ़ा नहीं मैंने, एक बार सी देख लेता हूँ क्या है. इन्वेस्टर शुड प्रेफर बॉन्ड 1 ओवर बॉन्ड 2 सिंस इट ऑफर्स हाईएस्ट स्प्रेड रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड लॉस. हाँ ठीक है, वो अमाउंट में चला गया डिफरेंस में, कि फर्स्ट वाले में 1% माइनस क्या था? 0.94, 6 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा. दूसरे वाले में 0.95 माइनस 0.935, 1.5 एक्स्ट्रा. गैप है ना, गैप एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? फर्स्ट वाले में गैप ज़्यादा है, सेकंड वाले में भी गैप है पर क्या है? कम है.
तो बाय दैट लॉजिक आंसर क्या होगा? सी, लेट सी। तो निकाला है वो लोग 0.95 माइनस 0.935 और वहाँ पे 1 माइनस 0.938, तो 6.2 basis point versus 1.5 basis point. So bond 1 is compensating us more, bond 2 is compensating us less. दोनों ही अंडरवैल्यूड है, पर बॉन्ड 1 में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल रहा है। That was CFA इंस्टीट्यूट का फाइल फ्रॉम LOSA, कवरिंग एवरीथिंग, जो कैंडिडेट रिसोर्सेज है, को रीडिंग एवरीथिंग, ठीक है ना। तो बोथ द फाइल्स विल बी शेयर्ड विद यू। एक बार आपको अपनी तरफ से वापस से क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए, ठीक है। वी विल स्टार्ट LOSA इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, फ्राइडे।